Good morning, students. How are you all? Are you doing your work in time? Have you seen my lecture yesterday? Did you understood it? So, shall we start our second day of the lecture? But before that, मैंने आपको कल कुछ questions दिए थे. Only few students have sent their answer to me on my personal WhatsApp number. तो मैंने कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो आपने आपको दिए थे वो ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिए हैं and I'm going to share this file to you in your WhatsApp group. You just tally or match these answers with yours और देखिए कहीं गलती नहीं हो रही है so verify it properly and write down in your fair notebook that you have prepared. So I won't take your much time now and I will start our today's lecture. So as today is the second day, in the previous lecture class I gave you how computer works, then how it operates through a schematic diagram from input to processing and give the result in output device and save the file in a storage. ये मैंने आपको बताया था. Then I started giving you explaining you about what is input device. I gave you example of input devices and I showed you the figure of those input devices. I told you about how it works. So today we are going to move to the next topic, which is output device. Input device, what input device does was it takes the value or the instruction with the help of keyboard or mouse. Once it receives the input from us, computer CPU process or do some work and then gives us a meaningful result. जैसे आपने अपना नाम टाइप किया थ्रू कीबोर्ड, उसको सीपीयू ने सेंस किया कि कीबोर्ड से ये लेटर टाइप हुआ है, की स्ट्रोक से ये लेटर टाइप हुआ है. It receives the signal, it detects the signal properly and it displays the result on the computer screen. जो भी हमसे इंस्ट्रक्शंस मिलता है उसको डिटेक्ट करता है, चेक करता है and it processes and display on the screen, computer screen. So today we will read what is an output device and how many types of common output device are there. Output device display output or result after the computer has processed the data entering using the key input device. Some of these are listed below. तो जैसे कि मैंने कहा कि हमसे जो इंस्ट्रक्शंस सीपीयू लेता है वो उस पर वो काम करता है. काम करने के बाद उसका रिजल्ट जो है आउटपुट डिस्प्ले यूनिट और विजुअल डिस्प्ले यूनिट में दिखाता है. यहाँ पर आउटपुट आपका हुआ, वन ऑफ द आउटपुट इज योर कंप्यूटर मॉनिटर. आपको मालूम है आपकी क्लास में एक और आउटपुट डिवाइस है, बहुत बड़ा सा आउटपुट डिवाइस. बता सकते हैं उसका नाम क्या है, हम क्या बोलते हैं उसको? यस, डिजिटल बोर्ड. तो क्लास डिजिटल बोर्ड में वो जो बड़ा सा स्क्रीन आप देखते हैं उसको आउटपुट डिवाइस बोलते हैं. तो अनदर आउटपुट डिवाइस इज योर प्रोजेक्टर, जहां से लेजर बीम थ्रो होती है आपके डिजिटल बोर्ड पे. So that is the second output device. Now we will go through it one by one. So first common output device is your monitor. How monitor looks like? It is a figure showing over here. A monitor displays out objects such as text, image or images on a computer, which is also known as visual display unit. It looks like a television. Definitely अगर आप सामने की तरफ से देखेंगे तो टीवी का मॉनिटर जिस तरह से दिखने में लगता है उसी की तरह कंप्यूटर मॉनिटर ऑलमोस्ट सेम होता है, इसका स्क्रीन ऑलमोस्ट सेम होता है. सो इस स्क्रीन को हम क्या बोलते हैं? विजुअल डिस्प्ले यूनिट. विजुअल मीन्स whatever we are seeing on a particular device, it's visual display unit. इसमें क्या क्या चीज आप देख सकते हैं? हम जो कुछ टाइप करते हैं उसको टेक्स्ट बोलते हैं. Then we can watch movies like videos. Then if you draw something like in MS Paint or Touch Paint,
that can also be seen as an image. आप अपनी पिक्चर वेबकैम से अगर कैप्चर करोगे तो वो भी इमेज के तौर पे या पिक्चर के तौर पे आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई देगी. Let's move on to the next topic, which is speaker. As the picture displays over here, it looks like a flat rectangular box with a woofer on the both end of the boxes with a cable attached to it. So speaker are the output device used to play voice, sound or music. Sometimes speakers are inbuilt in computers. Speakers are available in different shapes, size and colors. So it is clearly understood कि speaker क्या काम करता है. It whatever we record means हम माइक के थ्रू या माइक्रोफोन के थ्रू जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं, हमारी जो वॉइस होती है वो माइक्रोफोन लेता है और तार के माध्यम से सिग्नल कंप्यूटर कैबिनेट में जाता है, सीपीयू उसको रीड करता है एंड इट डिस्प्लेज द रिजल्ट इन कंप्यूटर स्पीकर. वो साउंड के तौर पे आपके कंप्यूटर स्पीकर में जाता है और उस वॉइस को हम सुन सकते हैं. सो एक्सटर्नल स्पीकर जो है आप ये देख रहे हैं, इस तरह से देखने में रहता है. कंप्यूटर स्पीकर बहुत छोटे होते हैं जो कंप्यूटर कैबिनेट के अंदर रहते हैं. ये कभी भी मॉनिटर के किसी एक एंड पे वो छोटे स्पीकर लगाए जाते हैं. तो अगर आपके पास एक्सटर्नल स्पीकर नहीं है तो नॉर्मली वो स्पीकर्स कंप्यूटर रिलेटेड एप्लीकेशन जो चलते हैं उसमें वो काम आता है. जैसे अगर हम कोई वार्निंग मैसेज या कंप्यूटर जब बूट होता है, एक म्यूजिक आपने सुना होगा जिन्होंने विंडोज 7 या विंडोज एक्सपी यूज की होगी तो उसमें एक वेलकम स्क्रीन का म्यूजिक आता है. तो वो कंप्यूटर के इंटरनल स्पीकर्स होते हैं, इनबिल्ट स्पीकर्स होते हैं. लेट्स मूव ऑन द थर्ड टॉपिक विच इज हेडफोन. एज यू कैन चेक यहाँ पर जो दो राउंड कलर के बॉक्स हैं ये कान पे लगाए जाते हैं और इसके ऊपर एक राउंड शेप का अटैचमेंट रहता है जो सर के ऊपर से आपके कान तक बैठाया जाता है. दैट्स व्हाई दिस वर्ड केम हेडफोन, अ फोन which is placed on top through your head. Headphones are used to place a speaker. Sorry, headphone can be used in place of speaker to listen to music, sound or voice if you don't want to disturb people around you. Now, as if you are clearly understood, हमें हेडफोन की क्या कब जरूरत पड़ती है जब मान लीजिए आप कोई गाना सुनना चाहते हैं और थोड़ा ज्यादा जोर से सुनना चाहते हैं. when you don't want to disturb others जो आपके आसपास बैठ के बातें कर रहे हैं या और कोई काम कर रहे हैं, जब आप किसी को दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं तब इस तरह के आप आउटपुट डिवाइस यूज करते हैं. तो ये हेडफोन्स जो होते हैं इसके डिजाइन कुछ इस तरह से होता है कि आपके कान में जब ये हेडफोन फिक्स रहते हैं इसकी साउंड की रिकॉर्डिंग या म्यूजिक आप अपने तक ही सुन पाएंगे, इसकी आवाज बाहर नहीं जाती. सो इट इज बेनिफिशियल when you do not want to disturb others and you want to listen song for yourself. Okay, let's move on the fourth topic which is printer. So जिस तरह से ये बॉक्स आपको दिख रहा है, ये सामने एक ट्रे होती है, इसमें पे कुछ पेपर्स लगे होते हैं, हार्ड कॉपी पेपर्स, A4 साइज के पेपर्स होते हैं जिससे प्रिंट आउट निकाला जाता है. मीन्स आप कंप्यूटर में कोई काम अगर वर्ड डॉक्यूमेंट में कर रहे हैं या लेटर राइटिंग कर रहे हैं या एप्लीकेशन लिख रहे हैं, जब वो एप्लीकेशन आप कंप्यूटर में रख के उसको विजुअली किसी एक डॉक्यूमेंट पे लेना चाहते हैं तब प्रिंटर की जरूरत पड़ती है. So let me read it for you. A printer is used to print images and documents on sheet of paper. A printed copy is called a hard copy. There are different types of printers: dot matrix printer, inkjet printers and laser printers. So as you clearly understood, प्रिंटर जो क्या करता है, प्रिंटर हार्ड कॉपी लेता है. कंप्यूटर स्क्रीन में आप जो भी देखते हैं तो उसको हम नॉर्मली सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं. यू कांट टच, यू कैन ओनली सी. आपने पढ़ा होगा जूनियर क्लास में द डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर आर those devices which you can see, touch and feel, but software is something, it's a program which you can see or type.
and make hardware to work. So जब सॉफ्ट कॉपी से आप हार्ड कॉपी निकालना चाहते हैं तब हम प्रिंटर यूज करते हैं। एंड लास्ट वन, प्रोजेक्टर आपके स्कूल के हर क्लास में लगे हुए हैं, आपके क्लास में भी लगा हुआ है, आप लास्ट क्लास में देखी होगी। ये वॉल माउंटेड प्रोजेक्टर होते हैं, दीवार पे टंगा रहता है, जो फोकस करता है आपके सामने डिजिटल बोर्ड पे या प्रोजेक्टर का जो स्क्रीन होता है वहां पर ये फोकस करता है। इसके अंदर से एक लाइट जनरेट होती है जो आउटपुट डिवाइस आपके सीपीयू से रिजल्ट निकालता है, वो वहां से लेजर बीम के माध्यम से आपके प्रोजेक्टर स्क्रीन पे देती है। So a projector is used to display image and documents on a surface. It emits light. जैसे कि मैंने कहा एक लाइट की बीम होती है, लेजर लाइट होती है वो on the surface of the projector to project the content displayed on a computer. यहाँ कंप्यूटर की जगह आपका, जैसे कि मैंने बताया, ये डिजिटल बोर्ड हुआ। So here are the real pictures that you can watch over. कितने तरह के monitors होते हैं? The first one is CRT monitors or cathode ray tube monitor. This one is LCD monitor. This one is TFT monitor. उसी तरह अलग अलग तरह के आपके हेडफोन्स हैं। दिस इज वायर्ड हेडफोन, कंप्यूटर जैक, कंप्यूटर कैबिनेट में ये जैक लगता है। सो दीज आर नोन एज वायर्ड हेडफोन्स। और विदाउट जैक जो होते हैं वो आपके हुए वायरलेस हेडफोन्स। इसमें सेंसर लगा रहता है जो सिग्नल के माध्यम से कैच करता है, तो इसमें केबल की जरूरत नहीं पड़ती है। 10 से 15 मीटर की दूरी पे आप तो हेड पे लगा के आप कुछ भी दूसरा काम कर सकते हैं और गाना सुन सकते हैं। द बेनिफिट ऑफ यूजिंग दिस हेडफोन इज यहाँ केबल की जरूरत नहीं, आप एक जगह बैठना जब नहीं चाहते इधर उधर दूसरा काम कर सकते हैं, तो आप इस तरह के वायरलेस हेडफोन आप यूज करते हैं। द थर्ड वन इज हेडफोन विद अ माइक्रोफोन। मीन्स अगर आप कुछ खुद का रिकॉर्डिंग भी करना चाहते हैं और कुछ सुनना भी चाहते हैं, when then we use headphone with a microphone. I'm not going to tell much about speaker. आपको मालूम है speaker किस काम आता है? It is an output device to listen or hear song or voice that you have recorded on computer. नेक्स्ट वन इज प्रोजेक्टर। कितने तरह के प्रोजेक्टर होते हैं? आपके स्कूल में जो प्रोजेक्टर है इस तरह से दिखने में, ब्लैक कलर का या व्हाइट कलर का, द शेप ऑफ दैट प्रोजेक्टर लुक्स लाइक दिस। अलग अलग डिजाइन के दो प्रोजेक्टर्स और हैं। दिस इज कॉल्ड, आप यहाँ सामने जो देख रहे हैं ये 3 अलग अलग सेट्स हैं जिससे प्रोजेक्शन किया जाता है। ये प्रोजेक्टर है, ये प्रोजेक्टर जहाँ पर प्लेस किया जाता है वो एक स्टैंड है, दिस इज स्क्रीन on which projector projects its light. So ये पूरा एक complete set है। And the other last one is printer. Different type of printers are there. This one is inkjet printer. This one is gasjet printer. ये ink से चलते हैं। ये लेजर प्रिंटर्स नहीं है, बट ये काफी स्मूथली काम करते हैं। दो प्रोडक्शन मतलब लेजर प्रिंटर की तुलना में इसका प्रोडक्शन कम होता है। मीन्स ज़्यादा पेपर एक साथ प्रिंट आउट नहीं निकाल पाता, इट टेक्स टाइम। दिस वन इज कॉल्ड MFD. इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्रिंटर कम स्कैनर। MFD स्टैंड्स फॉर मल्टी फंक्शनल डिवाइस। मीन्स ये इस तरह का एक मशीन है या बॉक्स है जिसमें एक से ज़्यादा तरह के काम होते हैं। तो ये प्रिंटर भी है, कॉपियर भी है और आपका स्कैनर भी है। So it's a costly device compared to these tools. ये normally office purpose में यूज होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रिंट आउट्स निकाले जाते हैं। So I'm going to okay. So ये आपका आउटपुट डिवाइस कंप्लीट हो गया। So let's move up to the last topic, which is storage device. What are storage device? Storage devices are used to store data, output or results such as images, documents, video and games. You can also transfer data from one computer to another using some storage devices.
There are two types of storage devices, internal storage device and external storage device. Internal storage device are inside the computer, whereas external storage device are connected to computer externally through different ports. सो स्टोरेज डिवाइस किसको बोलते हैं? स्टोरेज डिवाइस आर दोज डिवाइस जहां पर आप डेटा को सेव करके रखते हैं। जैसे कि जैसे कि आपने देखा होगा, आप कंप्यूटर लैब में जब कुछ पेंट करते थे, MS पेंट में, या कुछ डॉक्यूमेंट टाइप करते थे, रेखा मैम ने आपको बोला होगा बेटा सेव दैट फाइल ऑन योर कंप्यूटर एंड टुमारो वी विल कंटिन्यू आवर वर्क। आपको ध्यान है? तो जब आप फाइल आप कहीं सेव करने जाते हैं, वो एक स्टोरेज स्पेस मीन्स जहां पर आप डेटा को सेव कर सकते हैं, उसको वो स्टोरेज डिवाइस में सेव होता है। तो आपके कंप्यूटर लैब में जो स्टोरेज डिवाइस है वो क्या है? हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में हम डेटा को स्टोर कर रखते हैं, वो कंप्यूटर कैबिनेट के अंदर होता है। फर्स्ट डे आपको मैंने पिक्चर दिखाई थी, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर बताया था, कंप्यूटर बे या कंप्यूटर कैबिनेट के अंदर कितने तरह के डिवाइस अटैच रहते हैं, आपको ध्यान है ना? सो वो जो डेटा आप सेव करते हैं वो हार्ड डिस्क में सेव करते हैं। सो हार्ड डिस्क इज एन इंटरनल स्टोरेज डिवाइस, वो डिवाइस जो कंप्यूटर कैबिनेट के अंदर अटैच रहते हैं। और एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस होते हैं जो कंप्यूटर के बाहर रहते हैं, जो किसी USB केबल के थ्रू हम उसको एक्सेस करते हैं। जैसे आपने देखा होगा किसी भैया या दीदी के पास या घर पे एक छोटा सा डिवाइस रहता है, पॉकेट साइज का होता है, उसमें केबल लगी रहती है। उसको जब हम कंप्यूटर में अटैच करते हैं, कुछ डेटा वहां से हम कॉपी करते हैं और उसको कहीं भी ले जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। ठीक है? अदर देन एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस आपका पेन ड्राइव भी हुआ, वो आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम होगा, देखा भी होगा, वो छोटा सा होता है। सो लेट्स कैटेगराइज these two types of device. First one, as I said, is a hard disk. इस तरह से दिखने में लगता है। देखिए हार्ड डिस्क को अगर हम अंदर से खोलते हैं, ये CD डिस्क का जैसे डिस्क होती है उसी तरह से दिखने में लगता है। सिंगल डिस्क के भी हार्ड डिस्क होते हैं, मल्टीपल डिस्क रहते हैं, 3-4 डिस्क एक साथ अटैच रहता है। और यहाँ पर एक स्पिंडल रहता है। स्पिंडल आपका हेड हुआ जो ट्रैक्स को रीड करता है, जो कुछ भी आप टाइप करते हैं या कोई पर्टिकुलर फाइल खोलनी होती है उसको रीड करके वहां से वो एक्सेस करवाता है। So hard disk is already placed inside a computer. You can store large amount of data on a hard disk. ये हार्ड डिस्क आपके कंप्यूटर कैबिनेट के अंदर रहता है। सो इट्स एन इंटरनल हार्ड डिस्क, इंटरनल हार्ड डिस्क और इंटरनल स्टोरेज डिवाइस। और इसमें काफी मात्रा में ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा आप सेव कर सकते हैं। आजकल जो हार्ड डिस्क आ रहे हैं 1 टेराबाइट, 2 टेराबाइट, 5 टेराबाइट, इस तरह के हार्ड डिस्क आते हैं, ये चीजें which can store huge amount of data। आप सॉन्ग उसमें सेव कर सकते हैं, मूवीज सेव कर सकते हैं, वीडियो गेम्स खेल सकते हैं, कोई ग्राफिक्स का काम अगर करना हो, वेब डिजाइनिंग का काम करना हो, उस तरह के सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। सो those type of programs require huge amount of storage space. So hard disk is the best example of internal storage device. And let's move on to the second storage device, which is CD. CD stands for compact disk। देखिए किस तरह से दिखता है, छोटी सी डिस्क होती है, आपके हाथ में, आप हाथ में इजीली पकड़ सकते हैं। और इसके अंदर वाला पार्ट शाइनी प्लास्टिक कोटिंग की होती है, इसलिए शाइन करती है। ऊपर वाला सरफेस जिस कंपनी का बना होता है उस कंपनी के लेबल्स रहते हैं। एंड इट विल शो यू द कैपेसिटी ऑफ CD। The capacity of CD is 700 MB। I repeat, it's 700 MB, which is much smaller compared to hard disk। Hard disk 1 terabyte का होता है और terabyte size is much higher than MB। So 1 terabyte is much higher than 700 MB। तो जहाँ शॉर्ट स्टोरेज की जरूरत पड़ती है वहाँ CD डिस्क का यूज करते हैं। Move on to the next one, which is DVD। DVD stands for digital versatile disk। It also looks like exactly or similar to CD। कोई फर्क नहीं है, सिर्फ लेबल का फर्क होता है। और जो आप बाहर से देख सकते हैं साइज भी सेम होता है,
थिकनेस भी सेम होती है, बट लेबल से आपको मालूम चलता है कि ये सीडी है या डीवीडी है और उसका स्टोरेज स्पेस कितना है। एक सीडी आपका 700 MB का होता है जैसे मैंने आपको बताया, बट डीवीडी, वन डीवीडी may have 4.7 GB और 9.5 GB, जो कि 4 गुना ज़्यादा है, सॉरी नॉट 4 गुना, अप्रॉक्सीमेट 6 to 7 times हायर देन सीडी, जो कि स्टोरेज स्पेस आपका लेता है। सो आजकल सीडी बहुत कम यूज होते हैं, नॉर्मली डीवीडी आ गए हैं मार्केट में। इनफैक्ट ये भी ऑब्सोलेट होने जा रहा है बिकॉज इसकी जगह पेन ड्राइव ने ले ली है। एंड दीज डेज जो कंप्यूटर और लैपटॉप खरीदते हैं उनको उसमें सीडी ड्राइव नहीं आते हैं, उसमें पेन ड्राइव का सॉकेट लगा रहता है। सो पेन ड्राइव इज मच मोर पोर्टेबल, बहुत ही आसान है, पॉकेट में आप ले सकते हैं। सीडी ड्राइव और सीडी डिस्क और डीवीडी डिस्क को कैरी करना पड़ता है अलग से ट्रे में, जो कि पेन ड्राइव की जरूरत नहीं है। छोटा सा एक डिवाइस है विच इज द साइज ऑफ योर शार्पनर और लॉन्ग इरेजर, उस साइज का होता है। यू कैन पुट इट इन योर पॉकेट एंड यू कैन कैरी वेर एवर यू वांट। इसको सिर्फ प्लग एंड प्ले की तरह लगाते हैं कंप्यूटर कैबिनेट में यूएसबी पोर्ट में, and it can store huge amount of data compared to DVD and CD. एक पेन ड्राइव आजकल 16 GB, 32 GB और 64, 128 GB तक, 256 GB तक आ रहे हैं। So it contains huge amount of data. In future हो सकता है ये हार्ड डिस्क को भी रिप्लेस करे। ये इतना कॉम्पैक्ट है और इसके अंदर स्टोरेज इतना कॉम्प्लेक्स टाइप का बना हुआ है कि ये काफ़ी डेटा को स्टोर कर सकता है। सो आने वाले दिनों में फ्लैश ड्राइव एसएसडी से भी ज़्यादा ये स्टोरेज स्पेस होल्ड करेगा। लेट्स मूव ऑन टू द रियल पिक्चर्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस। मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है किस किस तरह के डिज़ाइन की आपके हार्ड डिस्क, सीडी डिस्क, डीवीडी डिस्क आते हैं। You can have a better idea to understand compared to these diagrams that you are seeing in the previous pages. अब देखिए अलग अलग तरह के हैं, ये किस तरह के आते हैं। ये ड्यूअल केस में सीडी आते हैं, बॉक्सेस भी उसी तरह के हैं, अलग अलग साइज के, जैसे ये 64 का है, ये 4 GB का है। माइक भी इसमें तो लिखा नहीं है, ये साफ नजर नहीं आ रहा है। तो अलग अलग स्टोरेज स्पेस भी यहाँ डिफाइन किया है। So here I'm going to wrap up today's topic, and tomorrow I'm going to give you few questions and points to remember. उससे पहले आप प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको जो पेजेस मैंने दिया है उसको पढ़िए, and based on my lecture and the pages that I shared in the group, please do the questions that I'm going to give you tomorrow. Alright student, I'm expecting you are working hard for your coming exam, and all the best that you will, I assume that you will score good marks. If you have any difficulty, do WhatsApp me on my personal WhatsApp number. Definitely I'm going to resolve your issue. So till then, see you tomorrow. Bye bye.